Yes. Good morning to everyone. How are you? I hope you will be fine. So, today we are going to start activity. Okay? So, we will do the activity of this chapter number first. In the previous session, we have completed our chapter. So, today we will do activity and question answer of this chapter. Chapter number first. Got it? Okay. So, take out your book of essays and turn to the page number 8. Which page number? 8. Okay, this page. Yes. Okay, so let's start. Write true, T or false F. Okay, so we have to tick true or false. हमें यहाँ पर true और false tick करना है. If statement is right, then we have to tick true, and statement is false, then we have to tick false. F. Got it? Yes, let's start. First, inscriptions are written on palm leaves and bark. Inscriptions are written on palm leaves and bark. Okay. Yes, leaves means पत्ते and barks means छाल. जो inscriptions थे वो ताड़ के पत्तों और barks पर यानी छाल पर लिखे गए थे या लिखे जाते थे या लिखे जाते हैं. So no. Okay, this is false. Okay, so you have to take here F. Next, second, the coins tells us about a ruler and the period she ruled. Yes, the coins tells us about a ruler and the period she ruled. मीन्स जो सिक्के होते थे, जो कॉइन्स होते थे, वो हमें एक राजा यानी शासक और उसके शासन काल के बारे में बताते हैं. यस. Okay, so it is true. So we will fill here T. Okay, T for true. Got it? Okay. Next, third, there are two types of historical sources. There are two types of historical sources. Means जो historical sources होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. Okay? Yes. So it is true. Okay? So it is true. You know, there are two types of the historical sources, literary sources and archaeological sources. So it is true. Next, fourth, we must preserve our heritage. We must preserve our heritage. Means हमें अपनी heritage यानी विरासत को संरक्षित करना चाहिए. Yes, it's our duty. So it is true. Okay, it is true. Don't write it down. Only you have to pay attention here and understand. Okay? Yes. So fourth sentence is true. So we will fill here D. Next, five. The Harappan script has not yet been decoded. The Harappan script had not yet has not yet been decoded. मीन्स जो हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है, हड़प्पा की जो लिपि है, उसको अभी तक डिकोड नहीं किया गया. डिकोड का मतलब समझते बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय डिकोड? मींस
उसकी व्याख्या करना, उसको समझना, यानी जो हड़प्पा की जो लिपि है उसको अभी तक नहीं समझा गया। सो इट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, स्क्रिप्ट मीन्स लिपि, लिखने की शैली, लिखने की क्रिया। ओके, लिखने की विधि, दिस इज स्क्रिप्ट। एंड जो हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज नॉट येट बीन डिकोडेड, मीन्स जो हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट है, हड़प्पा की जो लिपि है, उसको अभी तक डिकोड नहीं किया गया, उसको अभी तक समझा नहीं गया, उसको अभी तक व्याख्या नहीं की गई। तो इट इज ट्रू। गॉट इट? नाउ नाउ we move to the C, activity number C. Okay, fill in the blanks. Fill in the blanks means रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जो ब्लैंक है उसकी जगह आपको रिक्त स्थान में भरना वर्ड। क्लियर? यस। देश 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 इज अ बुक रिटन बाय कालिदास। इज अ बुक रिटन बाय कालिदास मीन्स यह बुक कालिदास द्वारा लिखी गई। तो विच बुक? द पंचतंत्र। विच बुक? द पंचतंत्र। ओके, THE, the PANCH, punch, CHATANTRA, the Panchtantra. Okay, the Panchtantra is book written by Kalidas. Got it? Okay, next. Second, the archaeological sources can be further subdivided into dash, dash, dash and dash. मीन्स जो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स हैं, जो पुरातात्विक जो सोर्स हैं, वह आगे जाके सब डिवाइड हुआ है। किसमें सब डिवाइड हुआ है? यानी सब डिवाइड का मतलब उप विभाजन, डिवाइड का भी सब डिवाइड। किस किस में? सील्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड मॉन्यूमेंट्स। ओके, so what is the answer? What we have to fill in the four blank? First seals, second coins, third inscriptions and fourth monument. Okay, yes. Next है third, बाबर wrote dash। बाबर wrote dash means बाबर ने लिखा या बाबर ने लिखी। क्या लिखी बाबर ने? बाबरनामा, his book. Okay, the name of this book is बाबरनामा। Okay, so बाबर wrote बाबरनामा। Got it? बाबर wrote बाबरनामा। So you have to fill बाबरनामा। Is it clear? Okay. Next. So Babarnama is a book. Okay. Babarnama is a book of Babar. He has written. Okay. He had written. Yes. Fourth, archaeological sources, sorry, provide us with the visual evidence of the political, social, and economic life of the people. Means हमें लोगों के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन के दृश्य के प्रमाण प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करता है? कौन देता है उनकी एविडेंस, विजुअल एविडेंस कौन देता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ओके, इज इट क्लियर? यस, बाय द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वी कैन नो द विजुअल एविडेंस ऑफ द पीपल। okay, of the political, social, economic life of the people. Means आर्कियोलॉजिकल सोर्स के द्वारा हम लोगों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, बाय आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। so here right answer will be आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो फोर्थ वाले ब्लैंक में क्या भरना है हमको? आर्कियोलॉजिकल सोर्स। Got it? Next. Fifth, early Indian literature was largely based in nature. Early Indian literature was largely
देश इन नेचर, मीन्स जो प्रारंभिक भारतीय जो साहित्य थे वो प्रकृति में थे, है ना, कैसे थे, रिलीजियस, कैसे थे, धार्मिक थे, रिलीजियस, so we have to fill in the box, religious, RELIGIOUS, religious मीन्स जो स्टार्टिंग में जो प्रारंभिक भारतीय लिटरेचर थे, भारतीय साहित्य थे, वो कैसे थे, नेचर में कैसे थे, वह रिलीजियस थे, धार्मिक थे, ओके, रिलेटेड टू गॉड, ओके, भगवान से संबंधित थे, इसलिए वो रिलीजियस थे। इज इट क्लियर? ओके, यस, नाउ we have done B and C activity. So now next we will do the question answer. Okay? Yes. Okay. You can see the first question. What is the history? What is the history? History क्या है? Okay? History means इतिहास. क्या है? So you can see the answer. Anything that tells us about the past or event that took place in the past is called history. What is history? Anything that tells us about the past or events that took place in the past is called history. Means जो भी घटना, यानी एनीथिंग दैट टेल्स, जो भी घटना जो पास्ट में व्यतीत हुई है, पास्ट में घटित हुई है, उन घटनाओं को हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री। ओके, इज इट क्लियर? सो एनीथिंग दैट टेल्स अस, जो भी कुछ हमें पास्ट के बारे में बताता है या पास्ट की घटना जो घटित हुई है, उन्हें हम कहेंगे हिस्ट्री। गॉट इट? सो एनीथिंग दैट टेल्स अस अबाउट द पास्ट और इवेंट दैट टुक प्लेस इन द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट, व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री? व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री? ओके, मींस व्हाई वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री की स्टडी करनी क्यों आवश्यक है? ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट रीजन, हिस्ट्री गिव्स अस a better understanding of the lifestyle of the people. History gives us a better understanding of the lifestyle of the people. Means जो हिस्ट्री है वह हम लोगों के वास्तविक जीवन शैली के बारे में है बताती। ओके, मीन्स जो प्राचीन काल में जो लोग थे उनकी कैसी लाइफ स्टाइल थी, उनकी समझ के बारे में हमें अच्छे से बताती है कौन? हिस्ट्री। क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड, टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट बेटर, टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट बेटर, और हमें वर्तमान को भी अच्छे से समझाती है। ओके, मीन्स हम पास्ट की गलतियों को देखकर वर्तमान को सुधार सकते हैं, सो हमें प्रेजेंट को भी बेटर समझने में मदद करती है। ओके, सो वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री, इसलिए हमें हिस्ट्री की स्टडी करना आवश्यक है। गॉट इट? नेक्स्ट, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ द coin in the reconstructive history. Give the importance of the coin in the reconstructive history. So here, what is the importance of the coin in reconstructive history? देखिए, मीन्स देखिए आप क्या पूछ रहे हैं कि गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉइन्स, मीन्स कॉइन्स मीन्स सिक्के, सिक्कों का क्या इंपॉर्टेंस है इन द रिकंस्ट्रक्टिव हिस्ट्री, मीन्स इतिहास के पुनर्निर्माण, यानी इतिहास के हिस्ट्री के रिकंस्ट्रक्टिव में इस कॉइन्स का क्या इंपॉर्टेंट है या कॉइन्स का क्या रोल है। ओके, सो हियर वी कैन सी द आंसर, कॉइन्स गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर, द पीरियड he she ruled, trade and trace
of the ruler and the economic condition of that time. Okay, so coin gives us information of the ruler. Coins हमें क्या देता है? उस समय के शासक की जानकारी देता है, उस समय की समाप्ति में उन्होंने किस प्रकार से शासन किया, कैसा व्यापार किया उन्होंने, ओके, और उनकी उस समय कैसी इकोनॉमिक कंडीशन थी, उन सब के बारे में जानकारी हमें इंफॉर्मेशन कौन देते हैं? कॉइन। कौन देते हैं बेटा? कॉइन। ओके, so coin give us information about the ruler, the period he ruled, trade and interest of the ruler and the economic condition of that time. Means उस समय की जानकारी हमें कॉइन्स देते हैं कि उस समय उनका शासनकाल कैसा था, राजा कैसे थे, शासक कैसे थे, उनका व्यापार कैसा था, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, ये सारी सूचनाएं हमें कौन देते हैं? कॉइन्स, उस समय के कॉइन्स। गॉट इट? नेक्स्ट, what are the sources of history? What are the sources of history means इतिहास के स्रोत क्या हैं या कौन कौन से हैं? ठीक है, यस, कौन कौन से हिस्ट्री के सोर्सेस हैं या क्या हैं? The materials that give us information about the past are called source of history. The materials that give us information about the past are called source of history. Means वे मटेरियल जो हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? सोर्स ऑफ हिस्ट्री। क्लियर? यानी जो भी हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी मटेरियल्स, ओके, चाहे वो रिटर्न के हो, ओके, क्लियर, चाहे मॉन्यूमेंट्स हो, चाहे कॉइन्स हो, चाहे क्या हो, सील्स हो। सील्स मीन्स मोहरे, ओके, सील लगाते ना, सील्स मीन्स मोहरे। सो सील्स हो, चाहे कॉइन्स हो, चाहे मॉन्यूमेंट्स हो, दे ऑल आर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। वे सारे क्या हैं? हिस्ट्री के सोर्स हैं। गॉट इट? बिकॉज दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, क्योंकि वे हमें पास्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं, सो दे आर कॉल्ड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इसीलिए वे हिस्ट्री के क्या कहलाते हैं? सोर्स। गॉट इट? Okay, I hope you have understood the all activities and question answer of this chapter. Okay, beta. So what's the homework today? Today you have to do this activity and question answer of this chapter in your fair note with good handwriting. Got it? Okay.